Virus is a submicroscopic infectious agent which usually used to contain a core genetic material that could be a DNA या फिर RNA, है ना. And this core genetic material is usually protected by the protein coat, which we used to know that capsid coat, है ना, that is known as the capsid. And virus has some unique properties, their features. We know that कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो यूजुअली रेप्लिकेट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है ना, जिनको हम कहते हैं होस्ट. एंड देन बाय यूजिंग देयर replicatory materials, they used to replicate and they used to cause the infection in the particular host, right? So this was the little introduction about the virus. That virus do not have the cellular organization. They used to contain the genetic material, that is the nucleic acid, either the DNA या फिर RNA. And we know that कि it is an obligate intracellular parasite which usually lacks the basically this used to lack the enzymes necessary for the protein and nucleic acid synthesis and are dependent for the replication on the synthetic machinery of the host cells. So this was the little introduction about the virus. Now let's begin with the virus host interaction. Okay, तो वायरस होस्ट इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकता है. एट द डिफरेंट लेवल इट कैन बी हैपन. डिफरेंट लेवल, तो सबसे पहले द फर्स्ट लेवल इट कुड बी एट द सेल्यूलर लेवल और एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द कम्युनिटी लेवल. तो द वायरस होस्ट इंटरेक्शन used to be take place at the different level. First is cellular, second is your individual या फिर at the community level. तो firstly we will deal with the at cellular level. Cellular level interaction में ऐसा हो सकता है कि सेल्स में या तो कोई भी अपेरेंट डैमेज ना हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द रैपिड सेल डिस्ट्रक्शन could also be take place. For example, sometimes like by the poliovirus. The poliovirus which usually used to leads to the cell death. So at the cellular level, what could be the causes of the cellular injury? तो at the cellular level अभी हम लोगों ने बात की कि हो सकता है कि वहाँ पे at the cellular level में कोई भी अपेरेंट सेलुलर डैमेज ना हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे द रैपिड सेल डिस्ट्रक्शन कुड बी हैपन, है ना. तो व्हाट कुड बी द कॉजेज फॉर द सेलुलर इंजरी? तो कॉजेज ऑफ सेलुलर इंजरी, तो देयर आर द डिफरेंट रीजंस या फिर द डिफरेंट कॉजेज विच यूज टू लीड्स द सेलुलर इंजरी. तो सबसे पहले ये कि ऐसा भी हो सकता है कि नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन जो है ना, द नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन की वजह से वहां पे होस्ट के जो प्रोटीन है एंड उनका होस्ट का जो डीएनए सिंथेसिस है वो रुक जाए बिकॉज ऑफ द वायरल प्रोटीन की वजह से. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वायरल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, समटाइम्स वायरल मैक्रोमोलिक्यूल्स यूज टू एक्यूमुलेट इन द इन्फेक्टेड सेल्स एंड बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द वायरल मैक्रोमोलिक्यूल्स द cellular architecture used to be get distorted या फिर this macromolecules used to start behaving as a toxic substances and they used to show the toxic effects on the cell, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो होस्ट के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना. या एंड समटाइम्स व्हाट यूज टू हैपन कि दिस वायरस used to loss या फिर this used to distort the permeability of the plasma membrane of the host cell also. तो by the as the this
we know that the cell used to be protected by the help of the plasma membrane, and if this plasma membrane will used to be get destroyed, their permeability will used to be get disturbed, then it is obvious कि cell used to be get harmed, cell injury is definitely the cell injury will used to be take place. And sometimes ऐसा भी होता है कि when the host virus host interaction when used to be take place, तो ऐसा भी होता है कि the polykaryocytosis used to be take place. The polykaryocytosis used to be take place. तो ये पॉलीकार्योसाइटोसिस क्या है? पॉलीकार्योसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सपोज दीज ऑल आर दी cells, the bunch of cells. तो when the interaction used to be take place, तो what used to happen कि वायरस के इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, ये क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, आपस में फ्यूज हो जाएगा, और ये एक तरीके से एक सिनकाइट्रियम का फॉर्मेशन करते हैं. विच सिनकाइटियम का फॉर्मेशन करेंगे मतलब कि अ सेल विच यूज टू कंटेन अ मल्टीपल न्यूक्लियस, है ना, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन करने लगते हैं. तो लाइक दिस ऑल्सो क्या होता है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, दैट यूज टू गेट distorted, that used to be get disturbed. Initially it used to be appear like this, but after the interaction what used to happen कि ये जो इनके एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स जो हैं वो फ्यूज हो जाएंगे आपस में, और एक लाइक दिस टाइप ऑफ सेल यूज टू बी प्रोड्यूस. तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन, या फिर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द सेल इंजरी. एंड द नेक्स्ट कुड बी कि समटाइम्स व्हाट यूज टू हैपन कि बिकॉज ऑफ दिस वायरस द सेल यूज टू पोजेस द न्यू टाइप ऑफ properties that used to confer the new properties. So what could be the new properties? Suppose this is the cell, normal cell, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दिस, तो इसमें क्या होता है कि न्यू प्रॉपर्टीज, हाउ द न्यू प्रॉपर्टीज यूज टू बी अपीयर्स कि सपोज दिस इज द सेल, तो दिस इज द नॉर्मल सेल, एंड व्हेन द इन्फेक्शन यूज टू बी टेक प्लेस, तो व्हाट यूज टू हैपन कि वायरस कोडेड एंटीजेंस यूज टू बी प्रोड्यूस्ड ओवर देयर, वायरस कोडेड एंटीजेंस यूज टू बी प्रोड्यूस्ड देयर. तो मतलब कि दिस इज द सेल, तो व्हाट यूज टू हैपन कि सपोज उनके सरफेस में क्या होगा, ये एंटीजन यूज टू बी प्रोड्यूस्ड, एंड हियर व्हाट यूज टू हैपन कि ये क्या करते हैं कि हेमएग्लूटिनिन का फॉर्मेशन यूज टू बी हैपन देयर, हेमएग्लूटिनिन का फॉर्मेशन होता है. तो मतलब कि यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल सेल, तो दिस नॉर्मल सेल यूज टू बी गेट ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, एंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज टू बी प्रोड्यूस ओवर दैट. So that properties could be that the virus coded antigen used to be produced, and this is known as the hemagglutinin. तो ये क्या करने लगते हैं कि this hemagglutinin has the property that used to absorb the erythrocytes on the cell surface. तो like this also what used to happen कि the changes used to be take place in the cell, and so like this also the cell injury used to be take place, है ना. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि this inclusion bodies used to be produced. Inclusion bodies start producing inside the cell. So inclusion bodies start producing in the cell. So what are the inclusion bodies? So inclusion bodies are actually the crystalline aggregates of the virions or made up of the virus. ये जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, एंड एट द डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टीज भी इनकी हो सकती है. इंक्लूजन बॉडीज वी नो, वी अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट दैट कि इंक्लूजन बॉडीज का मतलब कि सेल में द मास प्रोडक्शन विल यूज टू बी टेक प्लेस, है ना. तो दैट इज द इंक्लूजन बॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है सेल में. तो लाइक दिस द सेल इंजरी यूज टू बी टेक प्लेस. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हाउ द पैथोजेनेसिस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन यूज टू बी टेक प्लेस. द नेक्स्ट पॉइंट विल बी अवर पैथोजेनेसिस of
viral infection. So depending upon the clinical outcomes, the viral infection can be classified into two categories. Into the three categories बोल सकते हैं हम लोग. It is being classified into three categories. तो सबसे पहला है the inapparent और इसको हम लोग सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी बोलते हैं. द पैथोजेनेसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल आउटकम्स इट इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. इनअपैरेंट या फिर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. सेकेंड वन इज अपैरेंट, जिसको क्लिनिकल और ओवरेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं. ये जो ओवरेट इन्फेक्शन जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, सब एक्यूट भी हो सकता है, जिसको क्रॉनिक और क्रॉनिक कुड बी. ठीक है. देन थर्ड वन इज latent infection. तो the pathogenesis of virus can be these three types के ये हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनअपैरेंट या फिर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है. इनअपैरेंट और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन का मतलब कि यहाँ पे व्हेन द इन्फेक्शन यूज टू बी हैपेंस, तो उसका कोई भी डेफिनाइट या फिर ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स नहीं होता है ना. सब क्लिनिकल मतलब कि व्हेन द इन्फेक्शन यूज टू बी टेक प्लेस, तो वो कोई भी स्पष्ट रूप से जो सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल या फिर रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम्स डिजीज का या फिर इन्फेक्शन का शो नहीं करता है. तो इस टाइप का भी पैथोजेनेसिस हो सकता है वायरल इन्फेक्शन का, कि इन्फेक्शन तो हो गया है बट उसका कोई भी रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम्स नहीं दिख रहा है. दूसरा अपैरेंट मतलब कि स्पष्ट तरीके से जो आपको या फिर रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम्स जो इन्फेक्शन दिखाता है, उसको अपैरेंट या फिर क्लिनिकल और ओवरेट इन्फेक्शन कहते हैं. जो अपैरेंट इन्फेक्शन है वो एक्यूट हो सकता है या सब एक्यूट हो सकता है. एक्यूट का मतलब दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत फास्टली डिजीज कॉज करता है, या फिर बोल सकते हैं बहुत फास्टली और बहुत कम समय में, इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन अ वेरी फास्ट इन्फेक्शन यूज टू बी टेक प्लेस, तो उसको एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं. और सब एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब कि दिस इन्फेक्शन यूज टू बी स्प्रेड या फिर यूज टू बी हैपन स्लोली होता है और लॉन्ग टाइम तक दे यूज टू बी परसिस्ट, है ना. तो दिस इज द सब एक्यूट टाइप ऑफ इन्फेक्शन. द थर्ड वन इज द लेटेंट इन्फेक्शन. तो लेटेंट इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है विच यूज टू बी hidden, which does not used to show any kind of the immune response, या फिर जिसमें डिजीज नहीं होता है. ठीक है. तो दैट इज a hidden type of infection. Earlierly we have studied about the latent infection in the previous classes, as अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना. तो this was the pathogenesis of the viral infection. Let's now move ahead with the portals of entry. Portals of entry, या फिर we can say that the routes of entry of virus. तो
this virus can be entered inside the host body through the different canals या फिर through the different roots. We can say the appropriate term is the roots. कि ये जो वायरस है वो बॉडी में डिफरेंट रूट्स से एंटर हो सकता है. आइदर दिस वायरस कैन बी एंटर थ्रू दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये एंटर हो सकता है हमारी बॉडी में. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर हो सकता है या एलिमेंटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर हो सकता है या फिर स्किन के थ्रू एंटर हो सकता है या फिर कंजक्टिवा के थ्रू एंटर हो सकता है या फिर थ्रू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ये एंटर हो सकता है. ऑर्गन्स नॉट ट्रैक्ट के थ्रू एंटर हो सकता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रू दी जेनिटल ट्रैक्ट. तो सबसे पहले वी विल डील विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ वायरस. द डिफरेंट वायरस यूज टू बी एंटर थ्रू दिस रूट आर दी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, rhinovirus and etc. The next one is your alimentary tract. Alimentary tract is the next important routes of entry of virus. So some of the virus used to enter through this route and some of the virus used to be cause the infection in this route also, है ना. And most of the जो enveloped virus होते हैं they used to get destroyed by the bile which used to be produced in the stomach. तो basically जो rhinovirus है they used to get inactivated by the gastric acidity. तो that is the example बोल सकते हैं. So there are the different virus which used to enter through this route, as well as there are the different viruses which used to cause the infection in this tract also. So there are the different viruses which used to enter through this route are the examples like adenovirus, reovirus, hepatitis virus. And basically ऐसे वायरस जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं या फिर विच कैन सेट अप द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो बेसिकली इस रूट से एंटर करते हैं. तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक रोटा वायरस, लाइक पोलियो वायरस, है ना. तो देयर आर द नंबर ऑफ वायरसेस यू कैन सी इट मोर. देन नेक्स्ट इज स्किन. तो बहुत सारे ऐसे भी वायरस होते हैं जो कि डायरेक्टली स्किन के थ्रू एंटर कर सकते हैं. थ्रू द स्किन दे कैन एंटर. एंड बेसिकली ऐसे वायरस जो स्किन के थ्रू एंटर करते हैं वो लोकल लेजन्स कॉज करते हैं. मतलब कि डर्मल लेजन्स दे यूज टू बी कॉज एट द साइट थ्रू वेयर दे यूज टू बी एंटर. जहां से वो एंटर करते हैं वो डर्मल लेजन्स प्रोड्यूस करते हैं या कॉज करते हैं. डर्मल लेजन्स मतलब कि स्किन के ऊपर ऑन द डर्मिस द लेजन्स यूज टू बी प्रोड्यूस्ड, है ना. तो दे आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सच वायरस विच यूज टू एंटर, जो कि इस रूट्स के थ्रू भी एंटर करते हैं. तो एग्जाम्पल है पैपिलोमा वायरस, एर्बो वायरस, रेबीज वायरस, है ना. रेबीज वायरस बेसिकली जो कि एनिमल्स बाइट करते हैं तब क्या होता है कि स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है. एर्बो वायरस जो कि इंसेक्ट्स अगर बाइट करते हैं तो हमारे स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है. देन द नेक्स्ट रूट ऑफ एंट्री इज कंजक्टिवा. तो कंजक्टिवा के थ्रू किस टाइप के वायरस एंटर करते हैं? तो मीजल्स हो गए, एडिनो वायरस हो गए, ये सब. एंड द जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू या फिर बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑल्सो द नंबर ऑफ वायरसेस कैन एंटर इनसाइड वो बॉडी, है ना. So this was the routes of entry of the virus. Then next topic will be our spread of virus in the
बॉडी। अभी हम वायरस के बारे में जान लिए, किस टाइप का वो डैमेज कॉज करते हैं वो जान लिए, कैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं वो देख लिए। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में कैसे स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने इसके बारे में देखा था कि हमारी बॉडी में कैसे वायरस स्प्रेड होते हैं, तो द साइंटिस्ट हु स्टडीड कि हमारी बॉडी में कैसे वायरस स्प्रेड करते हैं, तो उनका नाम था दैट इज दी फेनर। फेनर वॉज द person, the scientist who used to studied that कि how the virus used to spread in the body। और उन्होंने इसको स्टडी करने के लिए कि वायरस हमारी बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है, इसको जानने के लिए उन्होंने कौन सा मॉडल लिया था, एक्सपेरिमेंटल मॉडल था उनका, द माउस पॉक्स। द माउस पॉक्स, ही यूज्ड द mouse pox as an experimental model। तो माउस पॉक्स वायरस जो था वो आपके पास जो मैंने PDF सेंड किया था उसमें पिक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा कि दिस माउस पॉक्स वायरस जो है this mousepox virus used to enter inside the body through the skin। आप लोग पिक्चर उसको ओपन करके देख सकते हो, उसमें बाय द फिगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप उसको देख के और बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो दिस माउस पॉक्स जो वायरस है वो माउस के बॉडी में कैसे एंटर करता है, द पोर्टल्स ऑफ एंट्री या फिर द रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस वाज द स्किन। स्किन से वो माउस की बॉडी में इंटर करता है, स्किन में वो थ्रू दी एज वो वहां से एंटर तो करता ही है, और साथ में स्किन में दिस यूज टू बी मल्टीप्लाई ऑल्सो, जो कि initially firstly this virus used to be multiply in the skin, and then after that they used to after the multiplication on the skin after the multiplication on the skin they used to they used to go to the lymphatics, to the local nodes, and then फिर वो lymph node में they used to multiply। After the skin they used to multiply on the lymph nodes, and through the lymph nodes they used to enter to the blood streams, and here when they used to enter inside the blood streams तो उसको बोलते हैं that is the primary viremia। जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि when the bacteria used to be spread in the blood, तो that is known as the bacteremia, right? वैसे ही जब ये वायरस जब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जब वायरस जब ब्लड में स्प्रेड हो जाते हैं तो उसको विरेमिया कहा जाता है। एंड देन थ्रू दी ब्लड what used to happen, that used to be transported to the spleen and to the liver of the mouse, and here this spleen and the liver is known as the central foci। This is known as the central foci for the viral multiplication। And then after the multiplication in the central foci, मतलब कि in the spleen and the liver, what used to happen कि there
again after the multiplication from this spleen and liver, again then the spillover used to be take place of the virus, and then again they used to be they used to be go to the bloodstream after the multiplication, the spleen and the liver. Then again after the multiplication they used to mixed up, they used to spread, या फिर they used to go to the proceed to the bloodstreams. And here when they used to go to the spill over to the bloodstream, so that is known as the secondary viremia. Secondary viremia. फर्स्टली इनिशियली जब वो लेम्फ नोड में मल्टीप्लाई होता है और फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, तो दैट इज नोन एज दी प्राइमरी विरेमिया. और फिर उसके बाद ये फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगा, स्प्लीन एंड लिवर में, और फिर वो वहां पे मल्टीप्लाई होगा. और फिर मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन फिर जब वो ब्लड में मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी विरेमिया. एंड हियर जब when they used to mix up in the this mix to the blood, तो यहाँ पे what used to happen कि like this the onset of clinical symptoms used to be happen. onset of clinical symptoms मतलब कि अब यहाँ पे से क्या दिखाई देगा, the disease का symptoms will used to be appear start, है ना. तो अब जब यहाँ जो वायरस जो है वो ब्लड में मिल चुका है, तो जो भी उसका टारगेट साइट होगा, जो टारगेट ऑर्गन होगा, वो बाय द ब्लड स्ट्रीम वो अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाएगा. और टारगेट ऑर्गन में पहुंचने के बाद फिर वो क्या करेगा, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द डिस्टिंक्टिव लेजन्स. ठीक है. एंड लाइक दिस यहाँ पे फिर क्लिनिकल सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, या फिर डिजीज का सिम्टम्स फिर यहाँ पे या फिर इन्फेक्शन का सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देने लगेगा. तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल मॉडल टेकन बाय द फेनर, दिस माउस पॉक्स, है ना. और उन्होंने बाय द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ माउस पॉक्स ये स्प्रेड ऑफ वायरस इन द बॉडी एक्सप्लेन किया था. ठीक है. एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल उन्होंने वायरस बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है, तो उसको बाय द एग्जाम्पल ऑफ द माउस पॉक्स उन्होंने एक्सप्लेन किया था. सिमिलरली कोई भी वायरस अगर बॉडी में स्प्रेड होता है तो इसी तरीके से स्प्रेड होता है. बस डिफरेंस ये होता है कि हर डिफरेंट वायरस में टारगेट ऑर्गन डिफरेंट होगा. ठीक है. यहाँ टारगेट ऑर्गन डिफरेंट होगा, और दूसरा सेंट्रल फोकी डिफरेंट होता है. कि हर वायरस में बस स्प्रेड इसी तरीके से होगा. दिस विल बी दी ओनली द प्रोसीजर बोल सकते हैं. दिस विल बी दी ओनली प्रोसीजर कि स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज विल यूज टू बी टेक प्लेस. बट द डिफरेंस इज दैट कि हर वायरस का डिफरेंट टारगेट ऑर्गन होता है और डिफरेंट सेंट्रल फोकी होता है. अदरवाइज जो स्प्रेडिंग ऑफ वायरस जो है बॉडी में वो इसी तरीके से ही होता है. ठीक है ना. तो दिस वाज द स्प्रेड ऑफ वायरस इन द बॉडी. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर